ये सब लोग एक्चुअली, मैं चाहता था डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, निकम सर, डॉक्टर सुनील आनंद, डॉक्टर दिनेश चौहान, जिनके अंडर में मैंने सीखा है, वो सब यहाँ आए, मगर इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस पर मैं एक शेर बोलता हूँ, फिलॉसफी में सर ने दिया तो उसको आगे बोलूंगा। तू नहीं तो तेरी तस्वीर ही सही। इरशाद वाह वाह तो करो। ओके, तू नहीं तेरी तस्वीर ही सही, तस्वीर नहीं तेरा नाम ही सही, वरना मोहब्बत के लिए वैसे तो बस एक एहसास ही काफी है। तो बेस्ट टीचर का रिलेशन द्रोणाचार्य के साथ किया जाता है, बट मैं नहीं करूंगा ऐसा, बिकॉज मेरे टीचर्स द्रोणाचार्य नहीं है। जिनसे मैंने सीखा है वो वाकई में कृष्ण है। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, बिकॉज टाइम ही सब कुछ है एक्चुअली। टाइम क्या होता है? टाइम स्पेस होता है। जितनी देर में मैं यहां से यहां आऊंगा वो 12 घंटे हो गए। सो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पेस विच इज एन अनलिमिटेड थिंग। तो एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस, आई could understand that initially there was nothing. Nothing means कुछ था ही नहीं, सिर्फ एनर्जी थी। Only there was an energy. Now this is I was telling about the importance of philosophy. Actually, philosophy is the mind of science, and science will always follow philosophy. Philosophy deals about something which is related to understanding everything, understanding the purpose of what is happening, while science about why it is happening and how we can copy, control and use it. That is science. The philosophy gives the purpose of the science. So we'll start. I don't know, it's a story, but we'll continue with this story because philosophy is a story actually. If you, the maximum energy what you hold in your body, that will cause disease to you, and we need to remove that energy from a person. That is the basic concept. If you understand this concept, then there would not be any exception to this law what I am saying. Second is Ardhanareshwar, which is the picture of Shiva and Parvati. जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारी लॉज हैं, हाँ, सिर्फ इसी लॉज पर हम पढ़ने वाले हैं। यू नो बट यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई। इसलिए आपको वापस याद दिला रहा हूं। दिस इज अ शिव एंड पार्वती। नाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा होना पॉसिबल है क्या? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? ऐसा क्यों दिखाया गया है? एक्चुअली इट हैज शोन दैट राइट साइड में शंकर जी दिखाया है, विच इज अ मेल एस्पेक्ट, and left side is पार्वती। तो गुजरात वाला ग्रुप ये बता देगा आराम से, राइट? बिकॉज दे आर प्रेडिक्टिव होम्योपैथ्स, दे आर वेरी वेल वर्स्ड, यू नो, taught about all the philosophy. This is nothing, this is nothing but the brain dominance. Now you understand what is the brain dominance? हमने समझा ही नहीं कि ऐसा है क्यों। Actually the person who has given Mayasam. Any guess? Any idea? No idea? Lord Krishna. So understand that what he taught was actually a philosophy, right?
he did not taught कि वो तीर कैसे चलाना है, बाण कैसे चलाना है. Why I say कि he is the best teacher, although best teacher का रिलेशन द्रोणाचार्य के साथ किया जाता है, बट मैं नहीं करूंगा ऐसा, बिकॉज मेरे टीचर्स द्रोणाचार्य नहीं है. जिनसे मैंने सीखा है वो वाकई में कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी भी समझाई है. बिकॉज द्रोणाचार्य का जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था, वो लड़ाई के वहां तो डर के मारे दुबक के बैठ गया. ये पता है कि नहीं कि महाभारत सुनाऊं? नहीं. ओके. 45 minutes I believe it is said that whole Gita has been narrated to Krishna, has narrated whole Gita to Arjun in 45 minutes, and he explained everything, including Mahism also. So that is the source of Mahism and all the philosophies. Use the first use of law of similar, similia similibus currenter. इसको हिंदी में बोलते हैं जहर जहर को काट देता है. तो Lord Shiva, I consider him as Lord of homeopathy, because he is the, I don't know it's a story, but we'll continue with this story because philosophy is a story actually. So we would be doing story only, जैसे हम पढ़ रहे हैं हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं. Okay? So he used the first, what was the first remedy he used? Any idea? बोलो. The first remedy what he used was काली. अब काली वो हमारी वाली काली नहीं दिया, हो ये वाली काली. दिस इज द फर्स्ट रेमेडी. हम ऐसे ही करते हैं ना, जो चीज जो बीमारी करती है वो ये चीज वो बीमारी को ठीक करेगी, ऐसे ही है ना. सो ही क्रिएटेड अ गॉडेस व्हिच रिसेंबल्स लाइक अ डेविल. दिस इज एक्चुअली द बेसिक. तो ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? ये सारे भगवानों की जो पिक्चर्स हैं, भगवानों की जो फोटो है, ये बड़ी विचित्र टाइप की है, ऐसा संभव ही नहीं है. तो लेटर आई रियलाइज कि जितने भी भगवानों की जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम. दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है. इस्लाम में जो वर्शिप करते हैं, दे डोंट वर्शिप अबाउट एनीथिंग, बट इस चीज को बहुत याद रखिएगा, बिकॉज इसके बेसिस पर नाउ आई हैव शेयर्ड विद अ फ्यू पीपल. सी आई आस्क व्हाट इज द नेम ऑफ पेशेंट. इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस किए हैं, जो प्रशांत जी ने भी एक्सपीरियंस किए हैं उस चीज को, और इनफैक्ट विनीता जी इज ऑल्सो देयर. विनीता जी इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. तो बस अब ये लोग कुछ दिनों में ये बोलने वाले हैं कि होम्योपैथी टोना टोटका है ना. सो एवरीथिंग इज अ बॉडी, नेम इज ऑल्सो अ बॉडी, एंड दिस वर्ल्ड का यूनिवर्सल लॉज में एक लॉ ये भी है दैट एवरीथिंग हैज टू हैज अ नेम. सो कैन यू टेल मी समथिंग व्हिच डज नॉट हैव एनी नेम? एनी वन एग्जांपल? कोई भी ऐसी चीज का कोई नाम नहीं होता. सोचो. नेम. So we have understood the name of God as a symbol, the importance of name, and why do we have a name, why everything has a name. She is going to explain. बताइए please. What is your name? Misbah Sheikh. Misbah. Misbah. What is the meaning of Misbah? Let's start from you. It means a lamp. Lamp. Okay. Electric. नहीं. Okay. चलो. So we need to understand that name is actually a meaning. Name is actually an adjective. तो जब मैंने अल्लाह के वो 99 नेम्स इंग्लिश ट्रांसलेटेड में पढ़े, बिकॉज वो बहुत कठिन, that he has actually given a power to in the hands of a homeopath to control the God. If you understand the real meaning of God, God is no man is sitting there, nobody is there. These are the forces which generates anything, which operates and which destroys. जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश.
हम बोलते हैं सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. सो व्हाट इज सोरा आउट ऑफ दिस ब्रह्मा विष्णु महेश? हाँ, दिस इज द स्ट्रक्चर. सारे के सारे भगवान दिखाए इंसान की तरह जाते हैं, बट विद एडिशनल क्वालिटीज. Increase your power. If you increase some of your qualities, you become God. At least some people will start treating you like God. So what I'm trying to explain you, this phenomenon is actually a universal law, universal phenomenon. पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसके ऊपर चल रहा है. And